Hello children, welcome to your maths video class. Children, since past few videos, we are doing unit 9 of your maths textbook, which is geometry. And in geometry, we have, so far we have done 2D shapes, 3D shapes, then we have also done some curved shapes. Children, in 2D shapes are also called plane shapes, that also I have told you. And 2D shapes are rectangle, square, triangle and circle. Then 3D shapes are also called solid shapes, and in this we studied about cubes, cuboids, then sphere, cone and cylinder. Then we talked about the surface of different types of shapes regarding their faces, corners, edges. We talked about all these things. Then we also talked about solids with plane surface and various objects which are of these shapes. Then we talked about solid with round surface, or you can call curved surface. Solid with curved surface which has a sphere and like cylinder, etc. And we also talked about things that are of different solid shapes, that are of 3D shapes, like cube, cuboid, cone and cylinder. So the things which are in shape of cube, they are called cubical. The things which are in the shape of cuboid, they are called cuboidal. Things which are in the shape of cone, they are called conical. And the things which are of cylinder, which look like cylinder shape, they are called cylindrical and spherical. The things which are in the shape of sphere are called spherical. And we discussed about various objects in our surrounding which are of these shapes. Then we started point and lines. In point, I told you that point is a dot on any plane surface, and that dot is given certain name. And when we join two points, we get a line segment. I have also told you that it is not possible to draw a line. We draw actually line segment. This is point and this is another point. When we join two points, we get a line segment. It is called line segment and not line, because it is not possible to draw a line. Line हम नहीं खींच सकते क्योंकि ये line extended है, कितनी भी दूर जा सकता है और इस direction में ये कितनी भी दूर जा सकता है. So we represent line को हम represent करते हैं by drawing these kind of arrows. This means that in this direction this can move to any distance, and in this direction this can move to any distance. So this is a representation of line, but it is not actually line. And whatever we draw, it is actually line segment. When we draw, this is called line segment. Then we talked about three different types of lines. We talked about three different types of lines. Let me write the topic here, points and lines, because we draw a line segment, and there are three types of lines. This also I discussed with you. Three types of lines. Children, one line which is in this direction, such lines are called vertical lines. And in your junior grade, when you were in lower KG or upper KG, you have studied this line in the form of standing line. But since now your grade has moved upward, you are in a senior grade in comparison to lower grade. So now you should call this kind of line as vertical lines. vertical, vertical lines.
These lines are called vertical lines. These type of lines, the lines which are like this, are called vertical lines. You have studied it as standing lines. आपने इसे स्टैंडिंग लाइन पढ़ा है छोटी क्लासेस में, बट नाउ सिंस यू आर इन ग्रेड 2, क्लास 2 में है, नाउ यू शुड कॉल सच लाइन्स एज वर्टिकल लाइन्स. आपको इन्हें क्या बोलना है? वर्टिकल लाइन्स बोलना है. जो स्टैंडिंग लाइन है वो वर्टिकल लाइन्स होती हैं. ठीक है. देन वी टॉक्ड अबाउट अनदर टाइप ऑफ लाइन. It is like this. When we draw line like dots like this, and when we join the dots, we get horizontal lines. इन लाइंस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. दीज लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इस तरह से होती हैं. और इसे आपने कैसे पढ़ा था जब आप छोटी क्लास में थे, जब आप लोअर केजी या अपर केजी में थे, तो आप इसे स्लीपिंग लाइन बोलते थे. क्या बोलते थे? स्लीपिंग लाइन. और इसे क्या बोलना है अब इसे आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस. वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. ओके. तो ये दो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था. वर्टिकल लाइंस के बारे में बताया था, और आपको किसके बारे में बताया था? हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में बताया था. अच्छा, अब एक और टाइप की लाइन है, एंड दिस ऑल्सो यू नो, ये ऐसे और ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा या फिर ऐसे. ठीक है. इसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइंस. क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइंस. ठीक है. दीज लाइंस आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइंस. और इसको अपने छोटी क्लास में भी स्लैंटिंग लाइंस में ही पढ़ा होगा शायद, जो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं. मतलब ये थोड़ा ऐसे रहेगा या थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ना पूरा वर्टिकल, ना पूरा हॉरिजॉन्टल. दैट लाइंस आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइंस. ऐसी लाइन को हम स्लैंटिंग लाइंस बोलते हैं, जो वर्टिकल भी नहीं होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल भी नहीं होते हैं, बीच बीच में रहते हैं. दे आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइंस. सो हमने 3 टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में जाना ना. कौन कौन सी? एक बार लिख लेते हैं. वर्टिकल lines, then next is horizontal lines, and then slanting lines. ये 3 टाइप्स ऑफ लाइंस हमने पढ़ा. हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस एंड स्लैंटिंग लाइंस. ओके. और वर्टिकल लाइंस ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे, और स्लैंटिंग लाइंस ऐसे. लाइंस मतलब लाइन सेगमेंट. वेन एवर आई से लाइन, इट मीन्स लाइन सेगमेंट. ठीक है. पीस ऑफ लाइन जिसको बोलते हैं. सो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन. ये सब आपने सीखा होगा व्हेन यू वर लर्निंग अल्फाबेट. आपने अल्फाबेट, जो इंग्लिश के लेटर्स जो थे, आपने जब लिखना सीखा होगा तो इस तरह के वर्ड्स आपने यूज किए होंगे. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन. जैसे अब आपको ए लिखना है तो ए कैसे होगा? 1 स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दिस इज ए, है ना. 1 स्टैंडिंग लाइन, देन देयर इज ऑल्सो कर्व्ड लाइन्स, जो अभी इसमें नहीं पढ़ रहे हैं. एक कर्व्ड हुआ, दूसरा कर्व्ड हुआ. ई बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना. 2 वर्टिकल लाइंस एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके. 1 वर्टिकल लाइन, 2 स्लैंटिंग लाइन, 2 vertical lines and 2 slanting lines. 2 vertical lines, 1 slanting line. 1 vertical line, 1 curved line and 1 slanting line.
one standing line or vertical line and another horizontal line. देखो आपके सारे इंग्लिश के लेटर्स होने लगे ना, बनने लगे ना, तो इस तरह से आपने इसको डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, बट विथ अदर नेम. आपने स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के फॉर्म में आपने इसे पढ़ा है. ठीक है, इन सब चीजों को आप ऑलरेडी जानते हैं, बस इसको अलग नाम से आपने पढ़ा है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ शेप्स. नाउ लेट्स सी some figures, okay, and those figures will be made up of different types of lines. जो हमने अभी 3 तरह की लाइंस के बारे में पढ़ा, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड स्लैंटिंग लाइंस. तो कुछ फिगर्स हम अभी देखेंगे जो इन्हीं तीनों लाइंस से बनी हुई हैं. ठीक है, इसको इरेज करने पहले चलिए फर्स्ट फिगर हम आपकी बुक से ही ले रहे हैं. ये है दिस इज द फिगर. अब इसका नाम लिख सकते हैं 1AB, देन C, D, E and F. ठीक है, 6 इसमें पॉइंट्स हैं. ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, डी ई एक लाइन है, ई एफ और एफ ए. इस तरह हमारे पास कितनी लाइंस हो गई? 1 2 3 4 5 and 6. वी हैव 6 लाइन्स. टोटल हमारे पास कितनी लाइन्स हैं? 6 लाइन्स हैं. अब इसमें ये देखते हैं कि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद हॉरिजॉन्टल लाइन्स. HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल लाइन्स. हम स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन्स से. ठीक है, और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं देखते हैं. हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी है? एक ये और एक ये, ए बी और ई डी, ये 2 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, है ना, स्लीपिंग लाइन्स है ना. तो हमारी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गई, ए बी और ई डी, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स. आप लाइन का नाम भी लिख सकते हो या सिंपली 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी बोल सकते हो. तो अब मैं यहां लिख रही हूं हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है. कौन कौन सी? ए बी और ई डी, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जिन्हें कि आपने स्लीपिंग लाइन्स बोल के सीखा होगा, है ना. अच्छा, अब बात करेंगे वर्टिकल लाइन्स की. वर्टिकल लाइन्स मतलब कि जो स्टैंडिंग लाइन होती है. इसमें कहीं आपको स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है इस फिगर में? इज देयर एनी स्टैंडिंग लाइन? नो. तो हम लिखेंगे 0, एक भी नहीं है. ठीक है, वर्टिकल लाइन्स 0. देन विल टॉक अबाउट स्लैंटिंग लाइन्स. स्लैंटिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स कितनी है? चलिए, जो टेढ़ी होती है, जो कि ना वर्टिकल होती है और ना जब हॉरिजॉन्टल होती है, दे आर स्लैंटिंग, थोड़ी सी स्लैंट करके होती है, टेढ़ी होती है. कौन कौन सी है वो लाइन्स? देखिए, बी सी एक हो गया, लिखते जाते हैं. फिर सी डी, फिर ई एफ और फिर एफ ए. ठीक है, ये है हमारी स्लैंटिंग लाइन्स. स्लैंटिंग लाइन्स है बी सी, सी डी, ई एफ और एफ ए. मतलब कितनी हो गई टोटल? 4. 1 2 3 4. स्लैंटिंग लाइन्स कितनी है? 4 है. हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी है? 2 है. और वर्टिकल लाइन्स एक भी नहीं है. ठीक है, तो टोटल 6 लाइन्स हो गई. 4 + 2 6.
टोटल हमारी 6 लाइंस हो गई इसमें, इस फिगर में। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ फिगर्स और करेंगे और हम करके देखेंगे हमें करना है, जिसमें कि हमें पता करना है कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है और कितनी वर्टिकल, कितनी स्लैंटिंग। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नाउ यू कैन ओपन पेज नंबर 116 ऑफ योर बुक। पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उसको आपको उसमें भी आपको इसी तरह से स्लैंटिंग लाइन और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस बताना है। ठीक है, चलिए अब एक फिगर है, इधर की तरह बना देते हैं। ये एक फिगर है, इसमें कोई नेम नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से नाम लिख देती हूँ, ए, बी और सी। ठीक है, मैंने इसको अपनी तरफ से नेमिंग कर दिया है इसका, इस फिगर का। और इसमें अब आपको बताना है कि कितनी स्टैंडिंग लाइन है, कितनी स्लीपिंग लाइन है और कितनी स्लैंटिंग लाइन है। ठीक है, तो करें। अब इस फिगर में हॉरिजॉन्टल से ही शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल, सॉरी, slanting lines and vertical lines. चलिए अब ये जो फिगर है इसको देखिए कि इसमें कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल है। विच लाइन इज हॉरिजॉन्टल, ए बी, बी सी या सी ए? विच लाइन इज हॉरिजॉन्टल? ऐसे लेटी हुई जिसको स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। सी बी या बी सी, दोनों वे में हम बोल सकते हैं, बी सी या सी बी। जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितनी है, 1 लाइन। आपको नंबर बताना है ना, राइट द नंबर ऑफ लाइन्स फॉर ईच। तो ये क्वेश्चन में लिख देती हूँ, राइट द नंबर ऑफ लाइन्स, राइट द नंबर ऑफ लाइन्स फॉर ईच। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है सबके लिए? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? बस एक है, ओनली 1। कौन सी है? सीबी। वो आपको नहीं बताना है कि सीबी है, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पर सीबी लिख दिया है, ए बी सी, उसको नेमिंग कर दिया है। तो सीबी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है इस फिगर में, और वो है सीबी। अब देखते हैं स्लैंटिंग लाइन, जो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है, जो ना तो वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है। तो वो कितनी है इसमें? वो भी एक ही है, ए सी या सी ए, दोनों में से आप उसको चाहे तो आप ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो। तो मैं इसको ए सी बोल रही हूँ। और कितनी है? स्लैंटिंग लाइन भी एक ही है, और वो कौन सी है? ए सी। ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन, मतलब जो स्टैंडिंग लाइन होती है, जो सीधे खड़ी होती है लाइन, वो कौन सी है और कितनी है? वो है ए बी। ए बी जो है वो इस तरह से खड़ी लाइन है, स्टैंडिंग है, जिसको कि हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वो कितनी है? एक। वो भी एक ही है। कौन सी? ए बी। तो इस फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक है, स्लैंटिंग लाइन भी एक है और वर्टिकल लाइन भी एक है। टोटल 3 लाइन्स हैं इस फिगर में, है ना, 1, 2 और 3। और तीनों जो 3 जो लाइन्स हैं वो सब अलग अलग टाइप की हैं, 1 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल एंड 1 स्लैंटिंग। चलिए एक और हम फिगर देखते हैं, उसके बारे में से बात करेंगे। यही बनती है इसको, ये इस तरह से है।
ओके, नाउ लुक एट दिस फिगर। यहाँ भी कुछ नेम नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से नेम दे देती हूँ। A B C D E F। ये मैंने अपनी तरफ से नेमिंग कर दिया है ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। कि अब हम बात करेंगे कि कितनी, कौन सी लाइन कितनी है। पहले स्टार्ट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर हमें बताना है स्लैंटिंग लाइंस, फिर बताना है वर्टिकल। हमें सिर्फ नंबर्स बताने हैं कि कितने हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। नेमिंग मैंने इसलिए किया है सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। चलिए, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटी हुई लाइंस कौन कौन सी हैं। पहली तो ये ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और एफ ई ये भी ऐसे ही है ना। तो ए बी और एफ ई जो है, आप क्योंकि ऐसे अगर अलग से देखेंगे तो वो इस तरह से है ना। तो ए बी और एफ ई ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, है ना। अगर बाकी फिगर्स, बाकी लाइंस को अगर आप ना देखें, सिर्फ ए बी और एफ ई को देखेंगे तो वो इस तरह से स्लैंटिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। एक थोड़ी छोटी है, एक थोड़ी बड़ी है, और आगे पीछे इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, पर ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई 2, ठीक है। अब बात करते हैं स्लैंटिंग लाइंस की। स्लैंटिंग लाइन कितनी है। एक ये है जो इस तरह से है थोड़ी, यानी ए एफ एक है, और बी डी और ए एफ ये दोनों लाइन स्लैंटिंग लाइन है। देखिए इस तरह से है ना, ये ऐसे है, और बी डी भी ऐसे है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट है, लेकिन ये टेढ़ी है और ये टेढ़ी है, यानी कि हमारी जो स्लैंटिंग लाइंस हैं वो भी कितनी है, 2 है। ए एफ और बी डी ये दोनों हमारी स्लैंटिंग लाइंस हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइंस कितनी है। सॉरी, मैं एक और भूल गई ना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक डीसी भी है, डीसी, ये डीसी ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम टोटल कहेंगे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 है। स्लैंटिंग लाइन हमारी 2 ही है, 1 और 2। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की, मतलब जो स्टैंडिंग लाइन जिसको आप बोलते हो, वर्टिकल लाइंस कितनी है। वर्टिकल लाइंस देखिए, बी सी और ई डी, बी सी ई डी ये दोनों वर्टिकल लाइंस हैं। ए एफ तो स्लैंटिंग है, लेकिन बी सी और ई डी ये दो जो लाइंस हैं ये दोनों वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि 2। तो टोटल कितनी लाइंस हो गई, 3 + 2 5, 5 + 2 7, टोटल 7 लाइंस है। लेट्स चेक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल हमारी 7 लाइंस हैं। ए बी है ना, ए बी एक लाइन हो गई, बी सी दूसरी लाइन हो गई, डी सी तीसरी लाइन हो गई, बी डी चौथी हो गई, एफ ई 5th है, और ए ई 6th है। मतलब टोटल हमारी कितनी हो गई, नहीं 7 लाइन हमको चाहिए ना। तो एक एफ ई छोड़, ए दिस इज ए एफ इज 1, एफ ई 2, ई डी 3, डी सी 4, सी बी 5, बी ए 6 एंड बी डी 7, टोटल 7 लाइंस हैं, जिसमें कि 3 हॉरिजॉन्टल है, 2 स्लैंटिंग है और 2 वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। चलिए एक और थोड़ा सा फिगर देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से हम इसको देखेंगे। मैं गोइंग टू रब दिस, इसको रब कर देते हैं और फिर चेक करते हैं, और हमारी जो लाइंस है इस तरह की। नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो क्या है, वो एक एनवलप के जैसे है, ठीक है। ये हमारा फिगर है ऐसे, ठीक है, और इसके बाद ये इस तरह से क्रॉस किया हुआ है, दिस इज द फिगर।
ये फिगर है, इसको ध्यान से देखिए आप। दिखने में ये एक एनवलप की तरह है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखिए, इसको हम दो ढंग से देख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। चाहे तो हम इसको एक लाइन मान सकते हैं, इसको हम एक लाइन मान सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां से यहां तक एक लाइन और यहां से यहां तक एक लाइन, ऐसे भी मान सकते हैं। तो लेट मी नेम इट, पहले नाम रख लेंगे ना तो हमारे को पता चलेगा कि हमें उसे सिंगल लाइन लेना है या डबल। मैं फिर से इसको A B C D और बीच में हमने कर दिया E। चलिए अब क्या होगा, जब मैंने जैसे ही इसको बीच वाले को एक नाम दिया तो अब ये क्या हो गया, ये 2 पीसेस में हो गए, कन्वर्ट हो गए, DE EB AE EC। अगर मैंने ये E बीच में नहीं लिखा होता तो अब चाहते तो DB एक लाइन मान लेते या AC को एक लाइन मान सकते थे, ठीक है। AC एक लाइन, DB एक लाइन हो सकती थी, पर क्योंकि मैंने यहाँ E लिख दिया है तो अब क्या हो गया, AE हो गया और EC हो गया, DE हो गया और EB हो गया, ये अलग अलग अब बट गया। नाउ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। अब हम देखते हैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल ZONTAL हॉरिजॉन्टल लाइन्स, फिर देखेंगे स्लैंटिंग लाइन्स, फिर वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। ये तीनों तरह की लाइन हमारी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड वर्टिकल लाइन। नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स फर्स्ट। टोटल लाइन्स है कितनी हमारी, यहां से यहां तक 1, AB 1 हो गए, BC 2, CD 3, DA 4, AE 5, EC 6, DE 7 एंड EB 8। टोटल हमारी 8 लाइन्स हैं। अब इन 8 लाइन्स में हमें पता करना है कितनी हॉरिजॉन्टल है, कितनी स्लैंटिंग है और कितनी वर्टिकल लाइन्स है। हॉरिजॉन्टल से हम स्टार्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमारी कितनी है इसमें, देखिए ऐसे जो स्लीपिंग लाइन जिसको आप बोलते हैं वो कितनी है, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2, कितनी हो गई 2। और कोई है इसमें स्लीपिंग लाइन, नो, तो ओनली 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ये इधर AB और DC, AB और DC 2 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है और कोई इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिख रही। अच्छा, अब बात करते हैं स्लैंटिंग लाइन की। स्लैंटिंग लाइन कितनी है, AE 1 हो गया, EC 2 हो गया, DE 3 एंड EB 4, मतलब टोटल कितनी हो गई 4। अगर ये E नहीं होता तो आप AC और DB बोल सकते थे, लेकिन बीच में क्योंकि हमने E कर दिया है तो नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो AE 1, EC 2, DE 3 एंड EB 4, टोटल कितनी हो गई 4। स्लैंटिंग लाइन्स हैं हमारी 4, स्लैंटिंग लाइन्स कितनी है 4। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन्स की। वर्टिकल लाइन्स कितनी है, BC और AB है ना, AB एक ऐसे लाइन है सीधी और BC दूसरी। वर्टिकल लाइन हमारी कितनी हो गई 2। और कोई लाइन हमारी बची है, हमने सारी लाइंस काउंट कर ली। हमने AB और DC को गिना हॉरिजॉन्टल लाइन में, फिर AD और BC को गिना वर्टिकल लाइन में, AE, EC, DE और EB हो गई हमारी स्लैंटिंग लाइंस। तो टोटल आप अगर प्लस करते हैं तो 4 और 2 कितना होता है, 4 + 2 कितना होता है, 4 + 2 होता है 6, और 6 में फिर ये 2 प्लस किया तो 8। हमारे टोटल 8 लाइंस हो गए। हमने स्टार्टिंग में गिना था ना इस फिगर के, हमने टाइप्स ऑफ लाइन गिनने से पहले हमने टोटल नंबर ऑफ लाइंस पहले देख लिया था। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 8 है। उन 8 लाइंस को जो हमने डिवाइड करके देखा तो उसमें से 2 हॉरिजॉन्टल है, 4 स्लैंटिंग है और 4 वर्टिकल लाइंस है। इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन से हमारा ये फिगर बना हुआ है। देखने में बहुत सिंपल सा फिगर है, लेकिन जब हमने लाइंस को जब डिवाइड किया तो वी गॉट दिस टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, हम और बहुत सारे फिगर्स हैं आपकी इस चैप्टर में जिनको हम करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ हम थोड़े से
टेढ़े मेढ़े फिगर्स भी देखेंगे डिफरेंट लाइन से बने हुए, बट नॉट इन टूडेज वीडियो, वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक जितना हमने आज किया है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट। ओके, थैंक यू।